آج ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 6 آیت۔ یہاں خدا ان کے کلام میں یوں لکھا ہے، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ خدا یسوع مسیح نے اس بات کو کہہ کر پوشیدگی میں دعا کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کام کرتے وقت، چلتے پھرتے وقت اجتماعی طور پر، کلیسیائی طور پر دعا نہیں کرنی، بلکہ ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں پوشیدگی میں اپنے خدا کے حضور میں بیٹھنا ہے۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات جو ہم خدا یسوع مسیح نے کہی کہ تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے خدا سے جو پوشیدگی میں ہے۔ ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ کاش کہ مجھے معلوم ہو کہ تو مجھے کہاں مل سکتا ہے، اور خدا یسوع سے یہاں یہ بات ظاہر کر رہے ہیں کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے۔ یہ خدا کے ساتھ ایک بڑی سیکرٹ اور خاص میٹنگ ہے، بندے اور خدا کے درمیان میں ایک بہت خاص گفتگو کا یہ ایک ذریعہ ہے، جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ تو اپنے کمرے میں جا اور دروازہ بند کر لے، یعنی ان تمام باتوں سے، ان تمام کاموں سے پیچھا چھڑا لے، ان تمام فکروں سے آزاد ہو کر تو میرے حضور میں بیٹھ، جہاں صرف انسان اور خدا ہوگا، تیسرا شخص کوئی نہیں ہے، صرف خدا اور انسان ہے۔ یہ وہ خاص جگہ ہے جہاں بیٹھ کر ہم اپنے اندر کی حالت کو خدا کے حضور میں خالی کرتے ہیں۔ وہ باتیں جن کو ہم کلیسیا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر خدا کے آگے نہیں رکھ سکتے، اس پوشیدگی میں جس میں خدا ہمارے سامنے ہے، خدا ہمارے روبرو ہے، خدا کے آگے رکھ سکتے ہیں اپنی کمزوریوں کو۔ ہم خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ خدا میں ایمان نہیں رکھ پاتا، وہ کلام جو میں سنتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے، میں اسے اپنے دل میں نہیں رکھ پاتا، میں ارادہ کرتا ہوں کہ اس کلام پر عمل کروں لیکن میرے سے بن نہیں پڑتا، میری مدد کر۔ خدا میرا بھائی تجھ سے دور ہے، اس کی راہیں تجھ سے دور ہیں، اس کو اپنی طرف کھینچ لے۔ اس خاص حالت کے اندر جب ہم خدا کے سامنے ہیں، خدا کے حضور میں بیٹھے ہیں، یہ خاص جگہ ہے جب ہم اپنے سیکرٹ خدا کے آگے رکھتے ہیں اور خدا ہمارے سامنے ہے تاکہ وہ اپنی پوشیدہ باتیں ہم پر ظاہر کرے۔ اس خاص حالت میں ہم ان لوگوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو خدا سے دور ہیں، ہمارے وہ عزیز، وہ بہن بھائی، وہ دوست جو خدا سے دور جا چکے ہیں، جو کلام سننے کے باوجود بھی پتھر ہو چکے ہیں، وہ چرچ تو جاتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں اس کلام کا اثر نظر نہیں آتا، یا وہ خدا سے اس طرح سے دور ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم ان کے لیے دعا بھی کریں تو ان کی زندگی میں کام نہیں کرے گی۔ لیکن میرے عزیزوں، خدا ان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ ابھی ہم نے ایک بڑی خاص بات ہے، جب جان ایف مارک صاحب یہاں آئے تو انہوں نے ایک خاص بات کہی کہ خدا نے ابتدا میں انسان کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد خدا نے یسوع مسیح کو کنواری مریم سے پیدا کیا، اور آج ایک دور ہے جب خدا نئے مخلوق کی تخلیق کرتا ہے۔ جب ہم اپنے بھائی کا بوجھ لے کر خدا کے حضور میں بیٹھتے ہیں اور خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا میرے بھائی کو، میری بہن کو جو تجھ سے دور ہے، جو اس دنیا کی گہما گہنی میں کھو چکا ہے، اس کو اپنے قریب لے آ، اس کی راہوں کو اپنی طرف موڑ لے، تو خدا اپنا آسمان کھولتا ہے اور اس کی راہوں کو اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں۔ گزرے کچھ دنوں کی بات ہے کہ خدا نے اس بات کو مجھ پر ظاہر کیا۔ میں اس بات کو جانتا تو تھا کہ ان لوگوں کے لیے شفاعت کرنی چاہیے جو خدا سے دور ہے، لیکن جس طرح سے مجھے کرنی چاہیے تھی شاید میں نے اس طرح سے، بلکہ بالکل نہیں کی جس طرح سے مجھے کرنی چاہیے تھی۔ میں نے ایک آیت خدا کے پاک کلام میں سے پڑھی، میں پڑھنا چاہوں گا اس کو آپ کے ساتھ اس وقت۔ حزقیل کے صحیفے میں یہ بات مرقوم ہے، حزقیل کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، میں نے ان کے درمیان تلاش کیا کہ کوئی آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رکھنے میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا۔ جب میں نے اس بات کو پڑھا تو میں خدا کے حضور میں رویا، میں نے خدا سے معافی مانگی کہ خدا مجھے معاف کر۔ میں نے آج تک اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے جو محلے میں ہیں، ان عزیزوں کے لیے جو تجھ سے دور ہیں، میں نے کبھی بھی اس بوجھ سے تجھ سے دعا نہیں کی کہ خدا تو ان کو بچا سکتا ہے، تو انہیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، تو ان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ میں خدا کے حضور میں اس بات کے رویا۔ خداوند نے یہاں پہ اس بات کو بنی اسرائیل پر ظاہر کیا کہ میں نے تم میں تلاش کیا اور مجھے تم میں کوئی شخص نہ ملا تاکہ میں اس زمین کو ویران نہ کروں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، کلیسیائی بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے رکھنے میں کھڑا ہو، ان کے لیے شفاعت کرے، ان کے لیے آنسو بہائے تاکہ خدا ان کو ان کی مشکلات سے نکال لے۔ خدا ہمیں ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ کون ہے جو اپنے آپ کو پیش کرے کہ خدا آج سے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے خادمین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے دعا کروں گا کہ خدا وہ تیری طرف مڑے، اور جو تیری طرف ہیں خدا تو ان کو مضبوط کر کہ وہ تجھ میں اور بڑھیں۔
वो लोग जो मुसलसल इस तरह से दुआ में बैठते हैं, उनकी दुआओं का जवाब अजीब तौर से दिखाई देता है। वो लोग, वो कलीसियाएँ, वो खादमीन जिन्होंने इस तरह से दुआ की, मुस्तकिल तौर पर एक दिन 2 दिन के लिए दुआ नहीं की, कई दफ़ा उन्होंने महीनों तक दुआ की, सालों तक दुआ की, और वो इस बात पर यकीन रखते थे कि जब हम खुदा के हुजूर में बैठे हैं तो खुदा हमें जवाब देगा, बेशक कई साल लग जाएं, लेकिन वो इस बात के लिए पुरउम्मीद थे कि हमारा खुदा हमारी दुआ का जवाब देगा। अमेरिका के अंदर 17वीं सदी के अंदर एक खादिम था, और उस वक्त अमेरिका इस तरह से तरक्की याफ्ता नहीं था, और वो खादिम जो था वो एक दुकान को चलाता था, और दोपहर के वक्त वो अपने खुदा के हुजूर में बैठता था कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए शफात करे। वो अपनी दुकान को बंद करता था, उसी दुकान के अंदर वो अपने लोगों के लिए आंसू बहाता था, उन लोगों के लिए जो नशे की लानत में गिर चुके थे, उन लोगों के लिए जो खुदा से दूर थे, उन लोगों के लिए जो अपने माँ बाप को छोड़ चुके थे, और उन लोगों के लिए वो कहता है जिनके अंदर खुदा के लिए अहमियत नहीं थी। मैं हर रोज खुदा के हुजूर में आंसू बहाता था कि खुदा इनकी राहों को अपनी तरफ मोड़ ले, इनको अपनी तरफ लेकर आ, इन्हें अपनी पहचान बख्श दे। और कहता है कि मैंने महीनों तक दुआ की, फिर ऐसा हुआ कि साल गुजर गए। एक दिन ऐसा आया कि एक शख्स मेरे साथ आया, पहले मैं अकेला था और फिर एक शख्स मेरे साथ शामिल हो गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खादिम बताता है कि एक वक्त आया कि मेरे साथ 25,000 लोग जमा हो गए, क्योंकि खुदा ने उस दुआ को जिसको मैं अकेला लेकर बैठा था, मेरी दुआ का जवाब दिया, क्योंकि वो मुश्किल तौर पर इस बात के लिए खुदा के हुजूर में बैठा था। याकूब सारी रात फरिश्ते से लड़ता रहा, और वो इस बात के लिए खुदा के हुजूर में दुआ करता रहा कि मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे। और एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने उससे कहा कि तेरा नाम आज से इसराइल होगा। यानी मुस्तकिल तौर पर वो खुदा के हुजूर में इस बात को लेके बैठा रहा कि खुदा मुझे बरकत दे, जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। वो फरिश्ते से ये कहता रहा। इसी तरह से वो लोग, वो शख्स जो शख्सी तौर पर इस बात के लिए खुदा के हुजूर में बैठते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में, हमारे घरानों में तू काम कर, खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करता है। एक और खादिम के ताल्लुक से बताना चाहूँगा, जो एक मिशनरी था, वो जिस कलीसिया का खादिम था, पासबान था, वो बताता है कि मेरी कलीसिया में सिर्फ 5 लोग थे, 5 लोग मेरे चर्च में सिर्फ बैठते थे, और मैं कई महीनों तक उनके साथ मिलकर दुआ करता रहा। और कई महीनों तक दुआ करने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने उस इलाके में काम करना शुरू कर दिया। वो लोग जो उसकी मुखालफत करते थे, वो लोग जो उसकी बात नहीं सुनते थे, उसी की कलीसिया का हिस्सा बन गए। क्यों? क्योंकि वो मुसलसल मुश्किल तौर पर खुदा के हुजूर में बैठा कि खुदा मेरी कलीसिया में काम कर, इन लोगों की ज़िंदगी को तब्दील कर। और पोशीदगी की हालत वो हालत है जिसमें हम अपने खुदा के हुजूर में बैठते हैं और कौन से दरख्वास्त करते हैं कि खुदा तू हमारी ज़िंदगी में काम कर, हमारे घरानों में काम कर, कलीसिया में काम कर। और एक वक्त ऐसा आता है इसी दुआ के दौरान जब हम अपने खुदा के हुजूर में बैठते हैं तो खुदा हमें लेकर चलता है, आगे लेकर चलता है। एक हवाला पढ़ेंगे, इससे कुछ बात आसान होगी जो मैं बयान करना चाहता हूँ। मरकज़ की इंजील में से उसका 9 बाब। अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद मैं बहुत गैर ज़ुबानें बोलता हूँ, मैं आंसुओं के साथ दुआ करता हूँ, वो इस चीज़ को रूहानी तरक्की समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रूहानी तरक्की ये नहीं है कि हम किस तरह से दुआ करते हैं, किस हालत में दुआ करते हैं, बल्कि रूहानी तरक्की ये है कि हम अपनी ज़ात के अंदर खुदा को कितना जानते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा का क्या तजर्बा रखते हैं, खुदा को किस तरह से जानते हैं, खुदा को किस तरह से देखते हैं। खुदा की ज़ात को जानना रूहानी तरक्की की तरफ हमारा एक सफ़र है। जब हम पोशीदगी में खुदा के हुजूर में बैठते हैं तो खुदा हम पर अपना आप जाहिर करता है, और खुदा अपने आप को 3 सूरतों में हम पर जाहिर करता है। ये 3 सूरतें एक ही हैं। खुदा अपने कलाम के वसीला से हम पर अपना आप जाहिर करता है। ये जो लिखा हुआ कलाम है, रिटन वर्ड, जब हम खुदा के हुजूर में बैठते हैं तो खुदा किसी आयत को हमारे सामने रखता है और हमारा ध्यान उस आयत की तरफ लगता है, और उसी आयत के तशरीह बाइबल के किसी दूसरे हिस्से में होती है और खुदा उस बात को हमारे लिए खोल देता है। और ये इस तरह से है जिस तरह से हम एक पजल्स के पीस को जोड़ देते हैं और हमारे सामने एक मुकम्मल तस्वीर आ जाती है। इसी तरह से खुदा अपनी ज़ात को हमारे लिए खोलना शुरू कर देता है बाइबल की आयात के वसीला से। कई दफ़ा ये काम रोया के वसीला से होता है, लेकिन इंसान को कोई भी ऐसी रोया नहीं मिलती जो इस पाक कलाम में दर्ज ना हो। इंसान को इस ज़मीन पर रहते हुए जिन मुकाशफात की ज़रूरत है वो खुदा ने इस कलाम में लिख दिए हैं, और कोई भी ऐसी रोया नहीं मिलती जिसका ताल्लुक इस कलाम से ना हो। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने बाइबल में से किसी आयत को पढ़ा और हमें ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग की तमाम उलझनें खुल गई हैं और मेरे और इस बात के दरमियान में कोई दूरी नहीं है, मुझे इस बात की बिल्कुल समझ आ गई है और ये खुदा की ज़ात है, खुदा की ज़ात की बिल्कुल समझ आ गई है। तीसरी हालत यह है कि खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा अपने आप को हम पर जाहिर करता है। मरकज़ की इंजील में से देखेंगे, मरकज़ की इंजील 9 बाब और उसकी 2 से 9 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है,
6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को हमरा लिया और उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी नूरानी और नहायत सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई धोबी वैसी सफ़ेद नहीं कर सकता। और एलिया और मूसा के साथ उनको दिखाई दिया और वो यीशु से बातें करते थे। पतरस ने यीशु से कहा कि रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहे, इसीलिए वो बहुत डर गए थे। फिर एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और उन्होंने यकायक जो चारों तरफ नजर की तो यीशु के सिवा और किसी को अपने साथ ना देखा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों में से 3 को लिया और लिखा है कि तन्हाई में वो उनको पहाड़ पर ले गया। दुआ का वो हिस्सा जिसमें हम अपनी दरखास्तें रखते हैं वो एक हिस्सा है, लेकिन अगला हिस्सा वो है जिसमें खुदा हमें लेकर जाता है और इस हिस्से में खुदा अपना आप हम पर जाहिर करता है। जैसे यीशु मसीह इनको तन्हाई में ले गया और इस तन्हाई के अंदर खुदा यीशु मसीह ने एक अलग हालत अपनी ज़ात की इन पर जाहिर की और उन्होंने देखा कि उसका चेहरा सूरज की मानद चमकना शुरू हो गया और उसके चेहरे से तेजी की तरह से नूर चमकना शुरू हो गया और वो उस नूर को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उसकी पोशाक सफ़ेद हो गई और लिखा है कि ऐसी सफ़ेद कि कोई धोबी उस तरह से कर नहीं सकता। ये यीशु की ज़ात का एक ऐसा रुख है जिसे बनी इस्राएल कौम नहीं जानते थे, जिसे दूसरे शागिर्द नहीं जानते थे, लेकिन इससे इन शागिर्दों पर जाहिर किया जिनको खुदा पोशीदगी में तन्हाई में पहाड़ पर लेकर गया। यानी जब हम खुदा की हजूरी में बैठते हैं, खुदा का इंतज़ार करते हैं, अपनी दरख्वास्तें खुदा की हजूर में रखने के बाद, अपना आहो नाला खुदा की हजूर में बुलंद करने के बाद, तो खुदा अगले हिस्से में हमें लेकर चलता है। हम अक्सर दुआ करते हैं लेकिन खुदा उनका इंतजार नहीं करते। ज़बूर नवीस कहता है कि मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। यानी जब वो सबर से खुदा के हजूर में खुदावंद का इंतजार कर रहा है कि मैंने अपनी दरख्वास्त से खुदा के हजूर में रखी हैं, मैंने अपना आहो नाला खुदा के हजूर में रखा है, अब खुदा अपना आप मुझ पर जाहिर करे, अपनी ज़ात को मुझ पर जाहिर करना शुरू कर दे। वो कहता है कि तब खुदा ने मेरी सुनी, जब वो सबर से खुदा के हजूर में बैठा और इन शागिर्दों को खुदा पहाड़ पर तन्हाई में लेकर गया। दुआ का वो हिस्सा जब आप खामोश हो जाएं तो खुदा आपको लेकर चलता है और खुदा इस दौरान अपनी ज़ात को आप पर जाहिर करता है। और वो लोग जिन पर खुदा यीशु मसीह अपना आप जाहिर करता है उनकी ज़िंदगी बहुत मजबूत होती है, वो ईमान में बहुत मजबूत होते हैं, वो हालात को फ़र्क तरह से देखते हैं, वो उन परेशानियों को, उन मसाइल को जो पहाड़ की तरह हमें दिखाई देते हैं उन्हें वैसा नहीं देखते। वो उनके आगे कुछ भी नहीं होते। वो सोचते हैं अगर बिल आ गया है, किराया आ गया है, हमारे मसाइल है, ख़ानदानों में लड़ाई झगड़े हैं, कोई बात नहीं, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारा जोर है, वो हमें निकाल लेगा क्योंकि उसने हमारे लिए कफ़ारा दिया है। उनके लिए सब बातें कोई अहमियत नहीं रखती। वो हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में इस बात के लिए तवक्को करते हैं खुदा आज हमारी ज़िंदगी में एक नया काम करेगा। वो हर रोज़ अपनी ज़िंदगी को खुदा के लिए खोलते हैं कि खुदा आज हमारी ज़िंदगी में एक नया काम कर, अपने रूह के वसीला से हमारे ख़ानदान में, हमारी ज़िंदगी में एक नया काम कर, क्योंकि वो खुदा की ज़ात के एक अलग रुख से वाकिफ़ है जिससे दुनिया वाकिफ़ नहीं। और दूसरी बात जो यहाँ पर हुई, देखा कि उन्होंने मूसा और एलिया को उन्होंने देखा। अक्सर लोग इस बात से एतराज़ करते हैं, मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि खादीन जो इस बात का इकरार करते हैं कि हमने पुराने अहद के नबियों को या पौलुस को देखा है, वो इस बात से इनकार करते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे शागिर्दों को ये तजर्बा हुआ है, उन्होंने मूसा और एलिया को देखा है। यानी ये तजर्बा अगर शागिर्दों के लिए ज़िंदा है तो ये आज भी ज़िंदा है। ये तजर्बा आज भी रूहुल कुद्स के वसीला से होता है, ज़िंदगियों को होता है, खादमीन को होता है। लेकिन क्योंकि वो लोग इस तरह से खुदा की हजूरी में बैठ के खुदा का इंतज़ार नहीं करते, वो इस बात का इंतज़ार नहीं करते कि खुदा अपनी पोशीदा बातों को उन पर जाहिर करे, खुदा उनको मजबूत करे, खुदा उनको जोर दे, खुदा अपने रूह के वसीला से उनकी ज़िंदगियों को भरता चला जाए, वो इस बात का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि वो अपनी दुआओं की एक लिस्ट खुदा के हजूर में पढ़कर सुनाते हैं। और जब वक्त आता है कि खुदा उन्हें लेकर चले, खुदा उनकी दुआओं का जवाब दे, खुदा उनसे बात करे और वो उठकर चले जाते हैं। और अगली बात यह कि पतरस ने उनसे कहा कि खुदा हम यहाँ 3 डेरे बनाए। जब आप दुआ में बैठे हैं तो खुदा आपको लेकर चल रहा है, आप रोया के वसीला से या कलाम पर मेडिटेट कर रहे हैं, खुदा ने आपका ध्यान किसी चीज़ पर लगाया है, तो उस दौरान उस चीज़ पर ध्यान लगाएं जिस पर खुदा ने आपका फोकस किया है। जिस तरह से पतरस दरमियान में बोला, इस तरह से बोलने की जरूरत नहीं है। जब वो बोला तो खुदा बाप की आसमान से आवाज़ आई, ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो। यानी उस कलाम की तरफ तवज्जो दो। जब खुदा आपसे कलाम करता है तो अपनी फिक्रों को एक तरफ रखते हुए, अपने परेशानियों को एक तरफ रखते हुए, अपने मामलात को एक तरफ रखते हुए, खा वो कितने ही बड़े क्यों ना हो, खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाएं, क्योंकि खुदा के कलाम में ज़िंदगी है, खुदा के कलाम में एक कुदरत है जो आपको जोर बख्शती है। और जो ये बात खुदा ने यीशु की ज़ात को बराह रास्त उन पर जाहिर किया है। एलिया
की अगर हम जिंदगी को देखें तो वो एक ऐसा शख्स है जो बादशाह के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसने बादशाह से कहा कि जब तक मैं ना कह दूं आसमान बंद रहेगा। एक आम शख्स है वो ऐसा कैसे कह सकता है? इसलिए क्योंकि वो खुदावन को बड़े करीब से देखता है, वो खुदावन की ज़ात को एक अलग तरह से देखता है जिस तरह से दूसरे लोग नहीं देखते। तालमूद जो यहूदियों की रवायत है उसके मुताबिक है कि एलिया 18 घंटे तक खुदावन के हुजूर में बैठता था, 18 घंटे तक। यानी वो वक्त जिसमें दूसरे लोग अपने रिश्तेदारों से गप्पे मारने में, दूसरे लोगों से बातचीत करने में, गुफ्तगू करने में जो वक्त गुजारते थे वो वक्त खुदावन के हुजूर में गुजारता था, खुदावन के साथ गुफ्तगू शनीद करता था, वो अपने मामलात को खुदावन के आगे रखता था, वो अपनी कौम की हालत को खुदावन के आगे रखता था, वो अपने दिल की हालत को खुदावन के आगे रखता था और खुदा की ज़ात से वो अलग तरह से वाकिफ था। इसीलिए वो बादशाह के सामने खड़ा होता है और कहता है कि जब तक मैं ना कह दूं आसमान बंद रहेगा। और ऐसा ही हुआ जब तक, और वो ये बात कहकर चला गया और आसमान 3.5 साल तक बंद रहा। और याकूब कहता है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। हमने गीत में भी गाया, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, वो हमारी तरह ही था, कमजोर था, परेशानी का शिकार भी हो जाता था, लेकिन वो इस बात को जानता था कि वो बात जो मैं खुदा अपने खुदा के हुजूर में रखूंगा, खुदा उस बात का जवाब देगा, खुदा जरूर ही उस बात का जवाब देगा, क्योंकि खुदा ने मुझे बरगजीदा किया है, उसने अपने बेटे के खून के वसीला से मुझे खरीद लिया है, उसने मेरी कीमत अदा की है। वो अपनी वैल्यू को जानता था कि जिस जगह पे वो था वो अपनी कदर को जानता था। आज बहुत सारे मसीहों की हालत यह है कि वो अपनी हालत को नहीं जानते, वो अपनी वैल्यू को नहीं जानते कि वो यीशु के खून से खरीदे गए हैं, खुदा के बेटे यीशु के खून से। वो इस बात को जानते नहीं हैं। और एक और ख़ास बात जो हम दाऊद की ज़िंदगी में देखते हैं कि वो कहता है कि तेरे इरादे मेरे लिए कैसे बेशबहा हैं। हम ऐसा है कि हम अपने करीबी दोस्त को करीब से नहीं जानते, हम ये नहीं जानते अच्छे तरह से कि वो मेरे बारे में कैसे सोचता है, लेकिन दाऊद अपने खुदा को इतने करीब से जानता है कि वो कहता है कि तेरे इरादे मेरे लिए कैसे बेशबहा हैं, उनका मजमूआ मेरे लिए कैसा बड़ा है। ऐसा है जैसे वो सामने उन इरादों को देख रहा है और वो गिन सकता है। वो कहता है वो शुमार में समंदर की रेत के जर्रे के बराबर है। ऐसा है जैसे तमाम इरादे खुदा जो दाऊद के बारे में रखता है वो दाऊद के सामने बिल्कुल खुले हुए हैं और वो उनको गिन सकता है। इस तरह से वो उनका बयान करता है, क्योंकि हम खुदा के हजूर में इस तरह से जाते नहीं हैं कि हम खुदा को जाने, उन बातों को जाने, उन इरादों को जाने जो खुदा हमारे लिए रखता है। हम कलाम को इस तरह से नहीं पढ़ते कि खुदा अपनी मर्जी को हमारी ज़िंदगी में खोल दे। इसी तरह से, इसी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी हर्डल्स हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। और हम जो दुआएं करते हैं उनका रिजल्ट भी इसीलिए नहीं है। पिछले दिनों में भाई शहजाद ने कलाम सुनाया कि हम जो दुआएं करते हैं उनका टारगेट नहीं है, क्योंकि हमारी दुआएं बिब्लिकल बेस नहीं है, उनकी बुनियाद खुदा के कलाम पर नहीं है। हम ऐसे हैं जैसे हवा में मुक्के मार रहे हैं, उनका कोई निशाना नहीं है, बेनिशाना दौड़ रहे हैं। लेकिन एलिया खुदा के कलाम से वाकिफ था, इसीलिए उसने खुदा के हुजूर में कहा कि जब तक मैं ना कह दूं आसमान बंद रहेगा। दाऊद खुदा से वाकिफ है, खुदा के इरादों से वाकिफ है जो खुदा उसके बारे में रखता है, इसीलिए वो मजबूत है। और वो कहता है कि मजबूत मेरा दिल है, शौकत दिन आलगाना। वो खुदा से वाकिफ है। और अगली बात जो खुदा यीशु मसीह ने कही कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे बदला देगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा जब तुम पोशीदगी में इन बातों को खुदा के हुजूर में रखोगे तो खुदा आसमानी बाप इन दुआओं का जवाब जरूर देगा। खुदा यीशु मसीह इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जब तू पोशीदगी में अपने खुदा के हुजूर में जाएगा और जो इन बातों को तू खुदा अपने खुदा के हुजूर में रखेगा, तेरा आसमानी बाप पोशीदगी में उनका जवाब देगा, जरूर देगा, क्योंकि तेरी कीमत है, क्योंकि खुदा ने तुझे बरगजीदा किया है। खुदा की नजर तुझ पर है, खुदा तुझसे मोहब्बत रखता है, उसका फजल तुझ पर है, इसीलिए वो तेरी दुआओं का जवाब देगा। इसलिए नहीं देगा कि हम बहुत अच्छे हैं, हम हफ्ते में एक बार रोजा रखते हैं इसीलिए वो हमारी दुआओं को सुनता है, या इसलिए कि हम हफ्ते में 2 बार चर्च जाते हैं, बल्कि इसीलिए कि उसका फजल हम पर है, हमसे वो मोहब्बत रखता है, इसीलिए वो हमारी दुआओं का जवाब देगा। वो मुंतजिर है। अभी हमने पढ़ा कि खुदा ने कहा कि मैंने तुम में ढूंढा। खुदा देखता है कि हम उसके हजूर में बैठें और अपने अजीज़ों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए शफाअत करें। आज मैं आपको फिर से एक बार इस बात के लिए उभारूंगा कि हम अपने अजीज़ों के लिए अपने खुदा के हजूर में दरख्वास्त करें, उनके लिए जो खुदा से दूर हैं, और पोशीदगी की हालत में खुदा के हजूर में जाएं, और वो बातें जो हम किसी से नहीं करते हम खुदा से करेंगे। खुदा आपको बरकत बख्शे।